Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So I'm back again with another solution video for the bi-weekly contest 171 which was conducted yesterday on 6th of December. And in this video we'll be covering all the four problems, their detailed solutions and the time and space complexities involved and how to approach the problems, what was the idea and logic behind them, and also what is the overall difficulty of the contest. So without wasting any time, let's jump to it. Okay, so let's start a discussion. So this is the bi-weekly contest 171, which was conducted yesterday. So as we discussed, the time duration of this contest was 1.5 hours, basically 90 minutes, and it had four problems, just like every other lead code contest. And overall, from my perspective, the contest was on the easier side. This contest was actually on the easier side because all the four problems, even if you go to the hardest problem in this, contest, which is the problem number four, that too does not directly lies in the hard region, but it's something in between medium and hard. You can call it as medium hard. And yeah, it's more on the medium side, not on the hard side. To be honest, it's not exactly a hard question. So overall, I'll say the contest was basically, consisting of four medium to medium hard questions, not exactly any hard questions like the last one which we did, right? So, yep, let's go to the first question that we have. Let's open the problem list. I hope everyone can see. I'll just zoom in and let me just, yep. Okay. So the first problem of the contest was complete prime number. So very direct from the title as well. So you are given an integer num. A number num is called a complete prime number if every prefix and every suffix of num is also prime. Return true if num is a complete prime or not. Simple question. So basically क्या है, you will be given a number n जो कि num है इस केस में, it will be, you will give a number num, and then you have to create all the prefixes from this number and all the suffixes from this number, and if every prefix and every suffix formed from this number or using this number is also a prime number, then basically you have to return true, it's a complete prime number. Okay, so prefix basically means starting from the first character, any string that can be that is formed starting from the zeroth index or from the first character is basically called prefix. When you talk about suffix, it's basically we start from the last index, but it's not reversal. Suffix basically means we start out from the last character, but the order of characters is still maintained. Okay, that is basically called suffix. Okay, so in this question, basically you have to check every prefix number and every suffix number that can be formed using the number given num, and we have to check if all those are prime. Then okay, then our given number is complete prime. Return true, else false. That question. Let's start with the first test case, which is basically num equal 23. So here we can see the prefixes that we can make is first of all 2. 2 is one prefix, and then 23 is also prefix, right? So 2 is a prime, correct? 23 is also prime, correct? So this means all prefixes are prime. Great. Now let's go to suffixes. When you start with suffix, you get only 3. You get only 3. 3 is a prime number, great. Then we take complete 23. Okay, it will not be 32. Remember, suffix does not mean in the reverse way. Okay, we start in the reverse direction, but the order of character is still maintained. So in suffix, the second suffix made will be also 23. So again, 23 we know it's a prime. So all suffixes and all the prefixes are prime. So therefore, 23 is a complete prime number, right? Then in case of 39, if we check the suffixes, right, prefixes, we get 3. 3 is a prime number, great. Then we form 39. 39 is not a prime number, we know, because 13 3 is 39. That's why it's not a prime number. So directly, without even checking the suffix, you can directly, say that, okay, it's false. It's not a complete prime number. In a similar way, we are given 7. So 7 itself is basically the prefix and suffix and everything is 7 itself. So that is going to be true because 7 is a prime number. Now let's look at the constraints. The value of the given integer num can go up to the power of 9 starting from 1. Okay. When we are talking about that, the the number can go up to the power of 9, how many digits would it contain? How many digits can it contain? So a very basic idea, very basic observation from here directly is basically what, if we have 10 to the power of 9 up to the power of 9, so basically the number of digits in the decimal representation is basically log 10 of that number, right? So if we take the power of 9, so taking log 10, basically it means 9 or 10 digits. So basically we are giving at max we'll be given a 9 or 10 digit number, right? So basically you can also look it as a string in the form of a string. That is one way to go. But if you extract the digits directly from num, that is also not a problem. The length of the string will also be 9, and the number of individual digits, if you extract, is also going to be 9 or 10. So that is basically we are given a very small string of size 10 in a similar way, in a basic idea. So now I think forming the prefix and forming the suffix is not a very difficult task. It's just like basically, let's say if you are given a number and you want to reverse it, that is one way to go. So yeah, you can either create a string out of the num and then form prefixes and check if it's every prefix is prime or not,
or you can also directly, extract digits, what I have done. Okay, so since this is a very brute force question, it does not require a lot of logic or complex thinking or a technique involved. It's just basic brute force. Okay, first of all, what do we do? We start with our vector digit where we extract the digits of all the num. So remember, when we are extracting digits, is basically we get in the reverse order. Let's say we get 1 2 3 4. 1 2 3 4 is a number. Then in the digits array, when we push it, the final digits array would look like 4 3 2 1, right? Because the digits we extract from the back, right? So keep that thing in mind. Then I've made two functions, check prefix and check suffix, and we pass on the digits array. Let's first go to check prefix array. So basically, as I said, that when we extract the digits, we get a reverse array. That's why I start from the end to make all the prefixes. So prefixes, basically you keep on multiplying by 10 and adding the digit, and then you just check prime. Okay, now checking prime, I think, is very basic thing. Okay, so one of the ideas might be, someone might be thinking about, okay, I'll create a sieve, right? Sieve also a good way to do, but sieve is actually not employed, cannot be employed here. Okay, why? Because the variety of numbers is huge, right? Sieve can be easily used when the value of the numbers goes up to the power of 6. Not an issue, you can directly create a pre-computed sieve array and check if the number is prime or not. But let's say if we are given 10 to the power of 9 and the range is basically 10 to the power of 9, in that case we can't use sieve. Okay, we can use sieve for higher numbers, but in that case the range has to be small. Remember, you can also check out my sieve of Eratosthenes video. Okay, the link will be in the top, right. Okay, yeah, so basically, for long, for bigger numbers, when the range is small basically means the difference between the starting range and the ending range is less than 10 power of 5 or 10 power of 6, then we can also make use of segmented sieves. Okay, but here we can see that the numbers can actually range. The range of the numbers also varies from 1 to the power of 9. That's why segmented sieve is not an, segmented sieve or sieve is not an option here. That's why we go with the the most basic technique of checking prime, that takes root n time, or n basically here is the number that we are checking if it's prime or not. So yeah, so here what do we do? Basically run a loop starting from 2 and run up to square root of x and check if it's a prime or not. And yeah, in the similar way we check the prefix, and in a similar way we also form the suffix. Okay, we have made a single prime checking prime function and two functions for suffix and prefix. Basically, making two different functions can enhance your readability in the code. That is also a very important thing that is judged in interviews, that how, what is your code quality, right? Writing the logic, knowing the logic is not always the top priority. It also depends how are you going to write the code. Let's say if you have got the logic, you have got the idea, and you're going to just implement it directly in everything in a single function, it will be just hodgepodge, it will be just messed up code which has no readability, right? And also no modularity. Well, a lot of times we might be using same things, right? So instead of writing the same code again and again, we can just create a function for it, right? So code readability is also a very good, very important thing that we need to understand. Okay, so that's why I've created two different functions and one check prime function, because it's needed by both of these functions. Yeah, so in this way, basically, we solve this problem. The time complexity of this problem can be understood as, first of all, the logarithm of number. Okay, first of all, the logarithm of number. So let's say 10 power of 9. So you can basically say it is around what we can say it's around, first of all, log n, log num into, and then we basically create everything. Okay, so we could say it's around log n into root num. That I think might should be the time complexity, because yeah, what do we do is, first of all, we make the string. So the length of the string, or basically the digit array, would be around log n. Okay, log num, and then basically you start creating a substring, prefix and suffix. So that is done in a linear fashion. Okay, so per operation we'll see, per operation if we see, it takes around root root x, whatever prefix we form. So taking a larger bound, taking an upper bound on the num, we can say it's around uh, log n, log num into log num into root num. Okay, that should be, I think, the correct thing. But yeah, it's overall, it can be easily passed by using the solution. It's very direct. Okay, root n for checking the prime number, and log in basically for extracting digits and creating the suffix prefix. Okay, so yeah, I think the first question is cleared now. Let's move to the second problem. Okay, now this problem is also a very simple problem, to be honest. Okay, but yeah, this may or may not require a lot of thinking. Okay, so first of all, let's read the problem. Minimum operations to make the binary palindrome. Okay, you are given an integer array nums. For each element nums of I, you may perform the following operations any number of times, including zero. Increase nums of I by one or decrease nums of I by one. तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर array है nums,
जिसमें नम्स ऑफ आई पे आप दो टाइप के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो और कितनी भी बार कर सकते हो। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू एट इंडेक्स आई by 1 or decreasing the value at index I by 1। ठीक है। A number is called binary palindrome if its binary representation without leading zeros reads the same forward and backward। कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर जो है उसको बाइनरी पैलिंड्रोम तब कहते हैं when we represent that number in its binary representation, that binary representation should be palindromic, उसको कहते हैं बाइनरी पैलिंड्रोम। Okay, your task is to return an integer array answer where answer of I represents the minimum number of operations required to convert nums of I into a binary palindrome। ग्रेट सिंपल। क्या कहता है कि बेसिकली फॉर ईच नम्स ऑफ आई, जो कि सारे एलिमेंट्स हैं, हमें बताना है फॉर ईच एलिमेंट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दैट एलिमेंट इनटू अ बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स से हमारे पास 1 2 4 है। ठीक है। अब 1 को देखते हैं, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 होता है एंड वी कैन सी इट इज पैलिंड्रोमिक। राइट। तो इसमें हमें कोई भी ऑपरेशन लगाना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेरी फॉर दिस फर्स्ट एलिमेंट इज 0। देन वी गो टू 2। 2 इज व्हाट, 2 इज 1 0। 2 इज 1 0। करेक्ट। अब देखो कि इसमें पैलिंड्रोम क्या क्या बन सकते हैं, या तो हम इस जीरो को वन कर दें, या तो हम इस जीरो को वन कर दें। ठीक है। या तो इस वन को जीरो कर दें। दोनों ही केस में हमारा बाइनरी पैलिंड्रोमिक बन जाएगा। बट अगर हम वन वन करते हैं तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 3। बट अगर हम जीरो जीरो कर देंगे तो वो जीरो बन जाएगा। तो 2 से 3 जाने में एक ऑपरेशन लगता है, वाइल 2 से 0 जाने में दो ऑपरेशन लगते हैं। सो द बेटर स्ट्रेटेजी इज टू कन्वर्ट 2 into 3 एंड दैट इज वाई वी ओनली नीड वन ऑपरेशन, दैट इज इंक्रीमेंटल ऑपरेशन। ठीक है। In a similar way, we can go to 4। 4 is 1 0 0। Now we can see directly, समझ में आ गया होगा कि 1 0 1 is the best possible palindrome to make, क्योंकि वो एक ऑपरेशन अहेड होगा। तो हम यहाँ पर इसको +1 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो बिट होगा 1 हो जाएगा। 1 0 1 is 5। राइट। और यू कैन ऑल्सो डिक्रीमेंट बाय 1। ठीक है। अगर आप 4 को इंक्रीमेंट बाय 1 करोगे तो 1 0 1 बनेगा। ठीक है। दैट इज पैलिंड्रोमिक, वो 5 होता है। तो 4 - 5 जो होता है वो एक ऑपरेशन आया इंक्रीमेंटल का। अगर आप 4 से माइनस करते हो 1 और 3 पे लाते हो, 3 इज ऑल्सो बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर। तो दैट्स वाई डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी एक लगेगा। सो ओवरऑल वी कैन सी, चाहे इंक्रीमेंट यूज करो चाहे डिक्रीमेंट यूज करो, वी ओनली नीड वन ऑपरेशन। करेक्ट। So that is what we are going to return, 0 1 1। ठीक है। I think that first test case is more than enough to clear out what the question is asking and what we have to do, right? And let's read the constraints. What are the constraints? The length of the array can go up to 5,000 and the values inside the array can also go up to 5,000 only। The values are quite less। यहाँ से एक बहुत ही यू नो प्रॉपर बहुत प्यारा आइडिया मिलेगा। वो ये है कि क्योंकि बिकॉज द नंबर्स आर स्मॉल, व्हाट वी कैन डू इज, देखो, वन थिंग कैन बी कि आप बिट्स को ऐड हटा करके देखो। राइट। लेट्स से वी हैव अ बाइनरी प्रेजेंटेशन, ओके, एंड वी वांट टू मेक इट पैलिंड्रोमिक। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स से देयर इज अ मिसमैच बिटवीन टू बिट्स i कॉमा j, जहां i ये फ्रंट पे है, j बैक पे है। तो हम क्या करेंगे, या तो बिट i को बिट j के बराबर बना देंगे, या तो बिट j को बिट i के बराबर बना देंगे। राइट। वी हैव टू थिंग्स। राइट। सो दैट इज अ स्ट्रेटजी, बट दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ग्रीडी अप्रोच इसका भी हो सकता है, बट दैट माइट रिक्वायर अ बिट कॉम्प्लेक्स मैथ। हम यहाँ पर यूज करेंगे कंस्ट्रेंट का फायदा। वील मेक यूज ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमारे पास स्मॉल है, 5,000 है। इसका मतलब वी कैन इजिली गेट बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर्स। व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 1 से लेके 5,000 या 6,000 ले लो। 6,000 अपर बाउंड, राइट। सो 1 से लेके 6,000 तक के जितने भी बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं उनको जनरेट कर लो। उनको जनरेट कैसे करोगे, यू बेसिकली रन अ लूप। From 1 to 6,000। Okay, and then you basically create a check function which is basically for checking if the binary representation is palindrome or not। और ये check function आप यहाँ पर देख सकते हो। we first convert the number into binary representation और फिर हम उसका palindrome check करते हैं कि if it's a palindrome or not। right। So first of all do one thing, that we convert all these numbers, check all these numbers from 0 to 6,000 which all numbers are binary palindromic, और उसको हम एक balance नाम के array में स्टोर कर लेते हैं, वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं। ओके। नाउ द थिंग इज, अब हमें ना कोई नंबर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, now the palin array contains all the numbers from 1 to 6,000 which are binary palindromic, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है by the end। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस इतना करना है कि हमारा जो नम्स एरे है उसमें से एक एलिमेंट को उठाना है और उसके बाद चेक करना है कि वो जो पैलिन एरे है, जो हमने बाइनरी पैलिंड्रोमिक वाला एरे बनाया है, उसमें चेक करना है कि उसके नियरेस्ट कौन सा बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर है, और बस डिफरेंस ले लेना है। दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर एक ट्रिक है, दिस इज बेसिकली प्री कंप्यूटेशन दोबारा ना हो, इसलिए यू कैन डिक्लेयर एन एरे स्टैटिक। सो स्टैटिक बेसिकली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल विद स्टैटिक इन सी प्लस प्लस स्पेसिफिकली, व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल, और वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन एरे, इट कैन बी string, it can be number, it can be boolean type, anything। if you create it with the key type or the keyword static, what will happen is whenever the value of that particular variable changes, it will be reflected globally।
इट विल बी रिफ्लेक्टेड ग्लोबली. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्री कॉम्पिटिशन बचा रहे हैं. यू कैन सी वी हैव रिटन पैरेलल्स डॉट एम्प्टी. सो व्हाट डू वी चेक, जब फर्स्ट टाइम ये कभी कॉल होगा तो सारे कंप्यूटेशन एक बार में प्री कॉम्पिटिशन हो जाएंगे. नेक्स्ट टाइम लेट्स से व्हेनेवर दिस इज कॉल्ड अगेन, next time let's say it's called again, so ये प्री कंप्यूटेशन नहीं होगा. why? Because in the last computation, in the last step, हमने पहले से ही ये सारे पैराट्रोमिक नंबर्स जो थे वो कैलकुलेट कर लिए थे. Now next time when the function is called, it doesn't has to again perform the pre-computation part. वो पहले से हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं. ओके, सो अप्रोच बहुत ब्रूट फोर्स है, बहुत ब्रूट फोर्स अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू, वी प्री कंप्यूट ऑल द बाइनरी पैराट्रोमिक नंबर्स बिकॉज द रेंज इज स्मॉल, दैट्स व्हाई वी कैन डू इट वेरी इजीली. राइट, वंस दैट इज डन तो हमारे पास सिंपल सी बात है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वी आर मूविंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन. तो ऑलरेडी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सारे बाइनरी पैराट्रोमिक नंबर्स होंगे. नाउ व्हाट डू वी डू, फॉर ईच नंबर इन द नम्स दैट वी गेट x, इसका लोअर बाउंड निकाल लो. लोअर बाउंड, ओके, लोअर बाउंड इज बेसिकली बाइनरी सर्च. सो बाय यूजिंग बाइनरी सर्च यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द नियरेस्ट, नियरेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला जो नंबर है. राइट, यू ट्राई टू फिट इन द पोजीशन की x जो है वो इस एरे में कहाँ फिट होना चाहिए. तो उसके हिसाब से ही द नेबरिंग वैल्यूज वुड बी द नियरेस्ट वन. राइट, अगर लेट्स से मैं 5 है मेरे पास और मेरे पास यहाँ पर 6 और 4 है. राइट, तो मैं 5 को 4 और 6 के बीच में डालूंगा. राइट, 7 के बाद नहीं डालूंगा. राइट, तो दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग. यहाँ पर बाइनरी सर्च यूज किया, लोअर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ लोअर बाउंड. वी डायरेक्टली चेक कि कौन सा एलिमेंट जो x के जस्ट बाद आना चाहिए. ओके, द नियरेस्ट नियरेस्ट बिगर नंबर. और l माइनस वन निकाल के, जहां पर आप देख सकते हो l माइनस वन निकाला, दैट इज बेसिकली दस द प्रीवियस नंबर, द नंबर विच इज जस्ट स्मॉलर देन हमारा x. राइट, तो हमारे पास दो कैंडिडेट्स बन जाते हैं, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे. गिवन द नंबर x, व्हाट इज द नेक्स्ट बिगर बाइनरी पैराट्रोमिक नंबर एंड विच इज द जस्ट प्रीवियस स्मॉलर बाइनरी पैराट्रोमिक नंबर. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेशन मिल जाएंगे. राइट, एंड वट एवर इज द मिनिमम बिटवीन द इंक्रीमेंटल ऑपरेशन और द डिक्रीमेंटल ऑपरेशन विल बी आवर आंसर. सो व्हाट डू वी डू, डिफरेंस निकाला. ठीक है, ये पहले अपर बाउंड चेक किया क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा होगा. फिर लोअर बाउंड वाला जो बेसिकली जो छोटा वाला नंबर है विच इज एल माइनस वन नंबर पे, एल माइनस वन इंडेक्स पे अगर है, इनकेस वो अगर एग्जिस्ट करता है. So this is the decremental operation. We check whatever takes the minimum operation. We take it in diff and push it back to one side and return an answer array. And that is how we do this problem. बहुत brute force है, डायरेक्ट है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें. जस्ट इफ यू लुक एट द कंस्ट्रेंट्स, अगर आपको कंस्ट्रेंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो आपको अपना आइडिया लग गया होगा सो कैसे करना है. A lot of people might have might have got involved in developing a complex strategy or a greedy approach for this, जो कि आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है. It's not wrong, but when we are in a setup of a contest, these things actually matter a lot because यहाँ पर टाइम बेस्ड पेनल्टी है and your rankings चेंज हो सकती हैं by drastic amount if you keep on uh, approaching a very you know a tight strategy, right? अगर आप ऐसा करते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स एक्चुअली बेटर, इट्स एक्चुअली गुड. बट द पॉइंट इज टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. दैट्स वाई अगर आपको दिख रहा है कि ब्रूट फोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क, देन गो फॉर इट. ओके, इट इज माई आई विल से रूल ऑफ थंब. इफ योर कोड वर्क्स, two three things. If your code works, never touch it. If brute force solution will pass in the contest, if you think it can pass, and if it can pass, then do write the brute force solution. Do not think about any other thing. If you think the brute force can work, because brute force, see, the brute force strategy is always based upon the core logic. Okay, that is the main thing. The optimizations are basically where you see an observation and you connect the core logic to an optimization. That is basically the point where you reduce code or reduce time complexity. That is basically connecting the core logic to the observations which result in optimizations. Brute force strategy is completely dependent upon the core logic, where you directly implement what you see. What you see, what is happening, you just implement, write it as it is. Okay, so whenever brute force can pass, do write brute force. The time complexity of this approach might be what it should be. It should be n log n. Why? Okay, not even n log n, but still we are going to take n log n because the numbers inside the array are also in the of order of the size of the array. So that's why the first pre-computation will happen only once. So that will take, you can say, 6,000, since we have an upper bound on number on what is the maximum integer possible. So yeah, let's remove the pre-computation part because that will take order n just one time only, right? Then we go to the second part where we basically perform the binary search and the differences. So the size of the array nums is n, and for binary search it will take log n time. Okay, we are also taking the size of the balance array in the terms of n itself. It may be more, but still it's n log n. So overall approach works in n log n, and yeah, it will pass all the constraint, it will pass all test cases easily. Okay, so with this we have covered the first two problems. Both problems were easy, pretty straightforward, not requiring a lot of thinking. Okay, in both of them we just use a brute force. Right, now let's go to the third problem. Great. Now this third problem is actually the first problem in this contest where you might require some amount of logic.
Okay. And to be honest, this question is also not very hard. It's actually based on greedy approach. Simple greedy approach. ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, तो बहुत ही आराम से आप डिसाइफर कर ले जाओगे कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है कोई बहुत तूफानी चीज नहीं लग रही है. लेट्स फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम. मैक्सिमाइज पॉइंट्स आफ्टर चूजिंग k tasks. You are given two integer arrays, technic 1 and technic 2, each of length n and n. दोनों का लेंथ n है, सिंपल सी बात है. ठीक है. इफ आई टास्क इज कंप्लीटेड यूजिंग टेक्निक 1, यू अर्न टेक्निक 1 ऑफ आई पॉइंट्स. ठीक है. अब टेक्निक को बार बार बोलना पड़ रहा है, तो लेट्स से T1 T2 एरे बना लेते हैं. T1 मींस टेक्निक 1, T2 मींस टेक्निक 2. सो हमारे पास दो एरे हैं T1 T2, दोनों का साइज n है. एंड इफ द ith task, if you do the ith task using the T1 array, you will get T1 I of points. T1 I of points. ठीक है. In a similar way, if a particular ith task is completed using the T2 array, then you will earn T2 I points. ठीक है. You are also given an integer k representing the minimum number of tasks that must be completed using T1. तो आपको एक इंटीजर k दे रखा है. ठीक है. विच सेज कि आपको T1 वाले एरे से, मतलब बेसिकली यूजिंग द T1 एरे और T1 टेक्निक, ठीक है, आपको एटलीस्ट k टास्क करने पड़ेंगे. ठीक है. जो बाकी के n माइनस के टास्क बचते हैं, वो आप चाहे T1 से करो चाहे T2 से करो, कोई दिक्कत नहीं है. बट एटलीस्ट के टास्क जो है वो आपको T1 से ही करने पड़ेंगे, चाहे जो कर लो. राइट. यू मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट के टास्क यूजिंग टेक्निक 1. दे डू नॉट नीड टू बी फर्स्ट के टास्क, वो कोई भी हो सकते हैं. वी नो द रिमेनिंग टास्क में बी कंप्लीट यूजिंग आइदर टेक्निक. रिटर्न इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम टोटल पॉइंट्स यू कैन अर्न. बहुत डायरेक्ट प्रॉब्लम है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल माइट, जैसे प्रॉब्लम पढ़ने के बाद उनके दिमाग में सबसे पहला आइडिया जो लगा होगा, जो बहुत एकदम ही हाई लेवल के लोग होते हैं, वो कहते हैं ये तो भाई डीपी है, ये तो भाई डीपी है. पर ये डीपी नहीं है. ये डीपी है ही नहीं. अगर तुमने ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ा होता कि यहाँ पर मैक्सिमाइज क्या करना है और हमसे क्या पूछा गया है, इट्स नॉट एक्जैक्टली डीपी. ठीक है. यू कैन सॉल्व इट यूजिंग रिकर्जन और डीपी, बट दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं है. ठीक है. डीपी इज अ थिंग दैट वी यूज व्हेन वी आर नॉट श्योर what should be the global answer, what should be the optimum answer. In that case we use dp. हम क्या करते हैं डीपी और रिकर्जन में? We basically try all possible answers and then choose which one is the best answer. That is basically dp. ग्रीडी में क्या होता है, you already know which is the best strategy, you already know कि मैं क्या फॉलो करूं जो मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा. ठीक है. इन ग्रीडी the simple thing is the local optimum is always the global optimum. ये होता है ग्रीडी का मेन कोर आइडिया, कि अगर आप जो ग्रीडी का एल्गोरिथम है, वो अगर लोकली फॉलो करोगे तो आपको ग्लोबल आंसर भी मिल जाएगा, वो भी करेक्ट. दैट इज बेसिकली ग्रीडी. राइट. और यहाँ पर ये ग्रीडी ही है. लेट्स सी. T1 is 5 to 10, T2 is 10 3 8 and K is 2. सो हमें T1 से क्या करना है, बेसिकली T1 एरे से एटलीस्ट दो टास्क T1 एरे का ही करना पड़ेगा. ठीक है. और ये भी याद रखो, अगर तुमने ith टास्क T1 एरे से कर लिया है, तो ith टास्क को T2 एरे से नहीं कर सकते फिर. ठीक है. वंस अ पर्टिकुलर टास्क इज डन, a particular ith task is done using one of the techniques, it cannot be, you know uh, it cannot be done using the other technique. right. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपको लग रहा है, तब तो सिंपल सी बात है, सबका सम कर दो, आंसर वही आ जाएगा. ओके. सबको चूज करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी कि हमें चूज क्या करना चाहिए. सबसे पहले टेक्निक 1 से चूज करते हैं कि क्या हमें उठाना चाहिए. अगर मैं टेक्निक 1 से अगर मैं टेक्निक 1 से ये 2 और 10 उठा लूं, लेट्स से आई डू द टास्क 2 एंड 10, दिस दीज बोथ टास्क यूजिंग T1, आई विल गेट व्हाट 12 पॉइंट्स. और जो मेरा ये वाला टास्क है, ठीक है, ये मीनिंग जीरो टास्क, वो मैं कर लेता हूँ T2 का यूज करके, देन आई गेट 10 पॉइंट्स. तो 12 प्लस 10 गिव्स यू व्हाट 22 पॉइंट्स. सो बेसिकली एट मैक्स यू कैन गेट 22 पॉइंट्स इन इन दिस टेस्ट केस. अगर आप कोई भी और फॉलो करोगे, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप ये पहले के दो टास्क कर लो यूजिंग दिस टेक्निक 1, तो 5 प्लस 2 7 हो गया. आखिरी टास्क टास्क आप यहाँ से करोगे 8, तो 7 प्लस 8 क्या होता है 15 होता है. 15 इज मच लेस देन 22. लेट्स से मैं 5 और 10 ले लेता हूँ, 5 और 10 ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, 5 10 15 हो गया T1 से. और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, तो 15 प्लस 3 कितना हुआ 18. दैट इज स्टिल लेस देन 22. So the optimal maximum possible is basically 22. So I hope the question is now clear. So let's directly jump to the constraint part. Constraint देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Always remember, क्वेश्चन दो बार पढ़ो, कंस्ट्रेंट चार बार पढ़ो. ठीक है. क्वेश्चन दो बार पढ़ो, कंस्ट्रेंट चार बार पढ़ो, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपको इंप्लीमेंट करना है, जो लॉजिक आपको डेवलप करना है, या फिर कोई ऑप्टिमाइजेशन भी आपके दिमाग में आएगा, दैट कैन एक्चुअली कम बाय जस्ट बाय रीडिंग द कंस्ट्रेंट्स प्रॉपर्ली. कंस्ट्रेंट्स आपको समझ में आ गए, देन यू कैन ऑल्सो डेवलप द इंप्लीमेंटेशन पार्ट वेरी इजीली. लॉजिक तो को लॉजिक तो अभी भी वही है, और उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट जैसा होना है. ठीक है. क्या टेक्निक यूज कर सकते हो उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, वहां पर कंस्ट्रेंट्स बहुत काम आते हैं. सो द साइज ऑफ द एरे n basically can go up to the power of 5. Great. And then basically, the values inside the technic array can also go up to 10 to the power of 5. Great. And the value of k, सिंपल सी बात है, it can range from 0 up to n. या तो सारे नंबर यूज कर लिया, तो कोई भी नंबर यूज नहीं किया. ग्रेट. अब यहाँ पर अप्रोच क्या है, इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, और एक बार समझते हैं. ओके. आई होप सबको दिख रहा होगा. ग्रेट. यप. ओके.
तो समझो हमें T1 एरे दिया हुआ है और T2 एरे दिया हुआ है, दोनों का साइज n है, एंड वी नो दैट वी नीड टू डू k टास्क फ्रॉम T1। अब सिंपल सी बात है, अनदर ऑब्जर्वेशन दैट यू वुड सी हियर इज, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें k टास्क करने ही करने हैं T1 एरे से, तो व्हाई नॉट टेक द k बिगेस्ट नंबर्स, राइट? सो व्हाट अ पर्सन विल थिंक इज, बेसिकली क्या करो, T1 को कर लो सॉर्ट, और उसके बाद जो टॉप के हैं, जो टॉप के टास्क हैं, उनको उठा लो। करेक्ट, यहां से तो आपका मैक्सिमाइजेशन हो गया। और जो बचे हुए टास्क हैं, उनको T2 या T1 से देख लो किससे करा सकते हो, राइट? सो द फर्स्ट थिंग जो लोग सोचेंगे, राइट, जो कि एक्चुअली इन द करेक्ट डायरेक्शन है बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, क्यों ये गलती देगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको T1 जैसे दिया गया, तो द स्ट्रेटेजी इज कि T1 को सॉर्ट कर लिया, और जो के मोस्ट अर्निंग पॉइंट्स वाले टास्क हैं उनको आपने T1 से कर लिया, यू डिड इट यूजिंग T1। द रेस्ट ऑफ द टास्क दैट यू वांट टू डू, यू कैन आइदर चूज T1 और T2 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा है। अगर T1 बड़ा होगा, T1 ऑफ आई बड़ा होगा तो हम उससे यूज कर लेंगे, T2 ऑफ आई बड़ा होगा तो उससे यूज कर लेंगे। पर जो टॉप के हैं वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब यहाँ पर आप कर जाओगे गलती, यहाँ पर आपकी हो चुकी है गलती बहुत बड़ी। बताता हूँ क्यों, बताता हूँ क्यों ऐसा। ओके, सो आप गलती क्या कर जाओगे, वेन यू आर टेकिंग T1 के बिगेस्ट टास्क, के बिगेस्ट टास्क, यहाँ पर आप एक्चुअली एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ कर जाओगे गलती से। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग T1, उसके आप के टॉप के चूज कर ले रहे हो। ठीक है, आप T2 पे ट्रेड ऑफ कर रहे हो, आप T2 पे ट्रेड ऑफ कर रहे हो। क्यों? ऐसा हो सकता है कि आपने तो बेसिकली क्या किया, यू हैव ट्राई यू हैव लुक एट द के बिगेस्ट इन द T1, राइट, के बिगेस्ट इन T1। ठीक है, क्या पता, क्या पता फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर T1 पे कोई वैल्यू थी और T2 पे कोई वैल्यू थी, लेट्स से ये x थी, एंड दिस इज अ बिगर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये x+1 था, ये x+1 नहीं, x-1, हाँ x+1 था मान लो। ठीक है, अब आपने तो क्या किया, व्हाट यू डिड इज बेसिकली सॉर्टेड द T1 एरे एंड चोज द टॉप के। मान लो इस टॉप के में ये एलिमेंट x आ गया, पर आपने ये नहीं देखा कि इफ यू वुड हैव यूज्ड T2 फॉर डूइंग दिस टास्क, इट वुड हैव बीन बेटर। करेक्ट, हमारी स्ट्रेटेजी अभी तक क्या थी कि भाई T1 को सॉर्ट किया और टॉप के उठा लिए। अब मान लो ऐसा था कि टॉप के में से कोई एक ऐसा टास्क है जिसको अगर आप T2 एरे से करते तो बेटर होता। करेक्ट, ऐसा हो सकता है ना। लेट से फॉर सम जो कि टॉप के में आ गया, ठीक है, उसकी वैल्यू x थी, और उससे कोरस्पॉन्डिंग जो टास्क T2 में था वो x+1 पॉइंट दे रहा था, सो इट वुड हैव बीन बेटर यूजिंग T2, हम कुछ और यूज कर लेते। ठीक है, सो हियर इज द थिंग, गोइंग choosing top k on basis of which is bigger is not the correct way, is not the correct way। द बेटर स्ट्रैटेजी टू एंश्योर कि हमारे पास हमेशा बेस्ट नंबर्स आएंगे, दैट विल बी बेसिकली सॉर्टिंग अपॉन द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2। ओके, फॉर एवरी टास्क, फॉर एवरी ith टास्क यू बेसिकली स्टोर द डिफरेंसेस बिटवीन T1i एंड T2i। ठीक है, अब ये डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो के बराबर होगा। पॉजिटिव मीन्स दैट T1 इज बिगर देन T2, नेगेटिव मीन्स T2 इज बिगर देन T1, एंड इक्वल तो आप जानते हो। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू, वी टेक दिस डिफरेंस along with the indexes and we sort these differences, इन डिफरेंस को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ विच वन टू चूज, जब आप सॉर्ट कर लेते हो, व्हेन यू सॉर्ट, ओके, सॉर्ट दिस डिफरेंस एरे, ओके, नाउ यू चूज द द टॉप के, नाउ चूज टॉप के, टॉप के मतलब कि टॉप के बिगेस्ट डिफरेंसेस। ठीक है, ऐसा क्यों बोला? अब देखो, अगर बिगेस्ट डिफरेंसेस है, सिंपल सी बात है, सी, इफ T1 ऑफ T2 इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब सिंपल सी बात है T1 को एम्प्लॉय करना बेटर है। ठीक है, बट द पॉइंट इज, कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको लेने में हमारा ज्यादा बेटर होगा, किसी को लेने में कम बेटर होगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, राइट? ओके, सो या डिफरेंसेस के हिसाब से देखना ज्यादा जरूरी है, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपका T1 माइनस T2 अगर ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है, सो इसका मतलब है कि उसको कम प्रायोरिटाइज करो। जहां पर ज्यादा डिफरेंस है, बेसिकली वी आर गेटिंग अ बिगर नंबर इन T1, दैट शुड बी चोजन, राइट? ओके, सो व्हाट डू वी डू इन हेयर, T1 माइनस T2 में से जो डिफरेंसेस है हमने उनको ले लिया, उनको सॉर्ट करा लिया, और उसके बाद जो टॉप के डिफरेंसेस यानी कि टॉप बिगेस्ट डिफरेंसेस, उसके हिसाब से हम वो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो T1 से उठा लेंगे। ठीक है, एंड वट एवर इंडेक्सेस आर लेफ्ट, you can either choose T1, you can either choose T1 or you can choose T2. You can choose. Okay, so I think that this approach is very clear. So basically, you take the differences, sort them up, and depending upon the top k differences, you take the first, T1 tasks, and remaining tasks can be done by using either T1 or T2, and that is basically a maximization problem. So let's directly into the code, that how will you achieve this? So yep, okay, let's just go to the code. Great. So here what I have used is basically a priority queue. Okay, so there are different ways, a lot of different ways. Instead of using a priority queue, we can also use a vector of pair.
finding the differences and then sort it up. Not an issue. You can do anything that you want to do, right? And you can see that we are going to use I entries only, right? So n entries at max in this priority queue. So we push the differences between T1 and T2, and then since we have taken a max heap, so the top k would already be stored at the top of the priority queue. We pop them out, add them up to get the first k task done using the earn points, right? Okay. So then you add the first k. After that, whatever the remaining is, you check if the difference is less than zero. Okay. So after we have taken the first k differences, because we want to do the first k task, depending upon the difference, once that is done using the T1 array, then for the remaining one, you can just check if the first part is basically storing a difference. If that difference is less than zero, this means that T2 is the way to go. And if it's greater than or equal to zero, it means T1 is the way to go. And finally, you return the answer. So overall time complexity of this approach is basically what you push, all the n differences, and priority queue takes log n time. So overall time complexity of this approach is n log n, and it works pretty well. It passes all the test cases. So this is basically how you solve the third problem, and this was also on the easier side, not on the difficult side. As I said, that it does not require DP at all. Okay, a lot of people might think कि यहाँ पर recursion DP लगा दो, but उसका need ही नहीं है. Greedy approach से बहुत ही easily हो जाएगा. Okay. So with this, we have completed the first three problems. Now let's move to the hard problem of the contest, which is actually not a hard problem, but a medium hard problem. On the contrary. Okay. Let's first read the problem. Okay. The name of the problem is minimum inversion count in subarrays of fixed length. You are given an integer array nums of length n and an integer k. आपके पास एक integer array nums है और एक integer k given है आपको. An inversion is a pair of indexes I comma j from nums j such that I is less than j and nums of I is greater than nums of j. So basically inversion क्या होता है? Inversion का मतलब होता है अनसॉर्टेड ऑर्डर अगर होता है आपके पास, ठीक है. So for any pair I comma j जहां पर I j से छोटा है, इसका मतलब I comes before j in the array, ठीक है, वो पहले आया है, such that जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है that is bigger than the value at jth इंडेक्स, पहले आया है और bigger than द jth इंडेक्स है, तो इट मींस कि वो एक इन्वर्जन है. इन्वर्जन बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई और एलिमेंट होना चाहिए था टू मेक इट सॉर्टेड, राइट. सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, राइट. अगर आपने मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ा होगा और या फिर कभी इन्वर्जन कभी और कभी क्वेश्चन किए होंगे व्हाट इज इन्वर्जन, सो यू वुड बी नोइंग अबाउट व्हाट इन्वर्जन एक्चुअली इज, डायरेक्टली क्या होता है, और यही डेफिनेशन जो है यही होती है. देन व्हाट डू यू डू, द इन्वर्जन काउंट ऑफ अ सब एरे इज द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन इट. सिंपल सी बात है, इन्वर्जन काउंट है कि कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन किस सब एरे में होते हैं. रिटर्न द मिनिमम इन्वर्जन काउंट अमंग ऑल द सब एरेज ऑफ नम्स विद लेंथ के. सो आपको क्या करना है, फॉर ईच सब एरे ऑफ साइज के जो कि नम से बन सकता है, उन सबका इन्वर्जन काउंट निकालना है, और उसके बाद जो मिनिमम इन्वर्जन काउंट आएगा अमंग ऑल द सब एरेज, आपको वो रिपोर्ट करना है, राइट. यू टेक ऑल द सब एरेज ऑफ द नम्स ऑफ साइज के, ठीक है, और उसके बाद यू काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स फॉर ईच सब एरे, एंड व्हाटएवर इज द मिनिमम इन्वर्जन काउंट अमंग ऑल सब एरेज दैट यू हैव टू रिटर्न, राइट. लेट्स ट्राई टू लुक एट द टेस्ट केसेस. द फर्स्ट टेस्ट केस इज 3 1 2 5 4. हमारे पास ये एक एरे दिया हुआ है, एंड के इज 3 बेसिकली हमारा विंडो साइज 3 है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट 3 नंबर्स. ये हमारा पहला सब एरे है जो कि साइज 3 का है, राइट. इन दिस 3 1 2 वी कैन सी यहाँ पर 1 के लिए इन्वर्जन कौन क्रिएट कर रहा है, 3 क्रिएट कर रहा है. एट द सेम टाइम 2 के लिए इन्वर्जन कौन क्रिएट कर रहा है, 3 कर रहा है. तो दिस मीन्स इन दिस स्मॉल सब एरे ऑफ साइज 3 हमारे पास कितने दो इन्वर्जन है. यू कैन ऑल्सो सी 3 1 2 हैज टू इन्वर्जन, एक 0,1 और एक 0,2, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में सॉर्टेड ही है, तो वो एक इन्वर्जन क्रिएट नहीं करता है. तो दिस मीन्स फर्स्ट हमारा सब एरे जो बना उसमें दो इन्वर्जन है. देन वी मूव टू सेकंड सब एरे ऑफ साइज 3 व्हिच इज 1 2 5. 1 2 5 वी कैन सी इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, यहाँ पर कोई भी इन्वर्जन नहीं है. सो दिस सब एरे हैज इन्वर्जन 0, so have zero inversions. Then we go to 254. When we go to 254, देख सकते हैं 25 sorted है, पर यहाँ पर जो 4 है, 4 के लिए 5 inversion create कर रहा है, right. So in this sub array we have 1 inversion. So overall हमारे पास क्या क्या काउंट आया, 2 0 और 1. Minimum among 2 0 1 क्या है, 0. That is why the answer for this question is 0. And in this way we go on for all test cases. So I think the explanation of the first test case makes the question very clear कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए हमें, right. Let's look at the constraints again. As I say कि constraint अच्छे से पढ़ो. The size of the array goes up to 10 to the power of 5. Okay, 10 to the power of 5, and the values inside the array go up to 10 to the power of 9. Great. And then the value of k can range from 1 up to n. Not an issue. ठीक है, आप कितने साइज का सब एरे लेना है, और हमारे एरे का साइज 10 की पावर 5 है, और जिसके अंदर एंट्रीज है वो 10 की पावर 9 तक जाती हैं, कोई इशू नहीं है. नाउ द नाइव अप्रोच, द बेसिक अप्रोच, द ब्रूट फोर्स अप्रोच इज व्हाट, कि आप एक हर सवेरे को कैलकुलेट करो, हर एक सवेरे एक्सट्रैक्ट कर लो, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो आप स्लाइडिंग विंडो से निकाल सकते हो. स्लाइडिंग विंडो तो कॉमन है सारे अप्रोच में, राइट. तो आपने स्लाइडिंग विंडो से अपना सवेरे निकाल लिया. देन व्हाट यू डू, यू मेक दिस एरे और यू पास दिस सब एरे टू अ मर्ज सॉर्ट. ठीक है, मर्ज सॉर्ट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट का यूज होता है बेसिकली, मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम होता है दैट इज यूज फॉर काउंटिंग इन्वर्जन ऑल्सो, राइट. तो दैट इज वन वे टू गो, कि जहां पर आप डायरेक्टली क्या करते हो
कि आपने सब एरे बनाया, उसके बाद फिर आप इन्वर्जन काउंट लगा देते हो। ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच? द प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच इज कि लेट से आपके पास मान लो कि आपको दिया हुआ है, सो हाउ मेनी सब एरेज विल बी फॉर्म्ड? सब एरेज विल बी n माइनस के। ठीक है, देयर विल बी n माइनस के सब एरेज, करेक्ट? अब ये समझो कि हर एक के साइज के सब एरे के लिए उसका इन्वर्जन काउंट जो होता है वो मर्ज सॉर्ट से यूज करेंगे, तो दैट विल टेक के लॉग के टाइम, करेक्ट? दैट विल टेक के इंटू लॉग के टाइम। ओके। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स अप्रोच का आएगा, वो आएगा n माइनस के इंटू के लॉग के। ठीक है। लेट से अगर के हमारा n बाय टू के बराबर होता है तो क्या होगा? अगर के n बाय टू के बराबर होता है तो क्या होता है? n माइनस n बाय टू इंटू n बाय टू लॉग ऑफ n बाय टू, यानी कि n स्क्वायर लॉग n के टर्म्स में जा रहा है। ठीक है, n स्क्वायर लॉग n, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि n स्क्वायर पहुंच जाएगा तो ये चलेगा ही नहीं, टेल ही देगा। दिस मीन्स द ब्रूट फोर्स अप्रोच कैन नॉट वर्क। अरे यार, ग्रेट। द ब्रूट फोर्स अप्रोच विल नॉट वर्क। तो हम क्या कर सकते हैं? चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। ओके, ग्रेट। हम अपने सब एरे को ही लेते हैं जो हमें ओरिजिनल एरे दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट केस को ही लेंगे दोबारा से। लेट से वी हैव थ्री, वी हैव वन, वी हैव टू, वी हैव फाइव एंड देन वी हैव फोर। ठीक है, ये फाइव साइज का हमारे पास एक एरे है एंड के इज थ्री। के इज थ्री। सो लेट्स चूज द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्जन कैसे क्रिएट होते हैं? इन्वर्जन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? मानो अगर मैं ith नंबर को मान लो अपने एरे में डालता हूँ। ठीक है, मान लो मैं ith नंबर को यहाँ एरे में डालता हूँ, एंड इफ आई गेट नंबर्स विच आर बिगर देन दिस ith नंबर। ठीक है, ith नंबर का बेसिकली मतलब है कि इंडेक्स पे जो वैल्यू है, राइट? इफ दिस नम्स ऑफ आई दैट वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट, ठीक है, इससे बड़े एलिमेंट ऑलरेडी हमारे जो भी सेट है, जो भी हम यूज कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए, उसमें बिगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी बिगर एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब इसके लिए इन्वर्जन क्रिएट करेंगे, राइट? लाइक लेट से फॉर 312 सवारे आप देखते हो, हाउ मेनी नंबर्स आर बिगर देन टू विच आर ऑन द लेफ्ट साइड? याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड, नॉट द राइट साइड। सो पहले पहले थ्री के रिस्पेक्ट में देखो, थ्री के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं, क्योंकि थ्री पहला ही एलिमेंट खुद है। व्हेन वी गो टू वन, हमारे पास ऑलरेडी थ्री प्रेजेंट है। अब जब हम वन को पुश करने आएंगे तो हम देखेंगे कि वन से ऑलरेडी पहले बिगर नंबर्स एग्जिस्ट एंड विच इज थ्री। तो हमारे पास कितना काउंट है? कितना काउंट है कि वो नंबर्स जो कि वन से बड़े हैं, वी हैव वन काउंट। तो दिस मीन्स कि इस विंडो में एक प्लस वन हो चुका है, इनिशियली एक प्लस जीरो हुआ था, राइट? एंड देन जब हम टू को लेके आते हैं, बेसिकली द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस विंडो, राइट? सो हमारे पास अभी जो हमारा जो भी स्टोरेज है वो क्या हो सकता है वो आगे डिस्कस करेंगे। वी हैव 1,3। अब हम टू को देखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर बिगर देन टू इन दिस करंट स्टोरेज? देख सकते हैं वन तो छोटा है बट थ्री बड़ा है। दिस मीन्स कि थ्री जो है दैट कम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टू एंड इज ऑल्सो बिगर देन टू। ऐसे कितने नंबर्स हैं? ऐसे सिर्फ अकेला थ्री ही है, करेक्ट? सो इस टू के लिए जो है ये थ्री एक इन्वर्जन क्रिएट करेगा एंड वी गेट प्लस वन। सो इस विंडो में कितना? टू इन्वर्जन आ गए, राइट? नाउ द पॉइंट इज, हम एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस विंडो का यूज करके, ठीक है, हम स्लाइडिंग विंडो बेसिकली यूज करने वाले हैं। लेट मी राइट इट इन द प्रॉपर वे। क्योंकि हम स्लाइडिंग विंडो यूज करने वाले हैं, यहाँ पर एक पॉइंटर, यहाँ पर एक पॉइंटर। तो कैन वी डू समथिंग लीनियरली? क्या हम डायरेक्टली ऐसा है कि जब हम इस एलिमेंट को अंदर लेंगे विंडो के और इस एलिमेंट को पुल आउट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, तो क्या चूज करना चाहिए हमें? राइट? सो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि स्लाइडिंग विंडो से ही हमें मिल जाए? सो अंडरस्टैंड दिस। लेट से इनिशियली जब हमने अपना पहली के विंडो प्रोसेस कर ली, तो बेसिकली हमारा ऐसे पूरा एक एरे है जिसका साइज n है। हमने फर्स्ट के नंबर्स प्रोसेस कर लिए, ठीक है। इसके हमने इन्वर्जन काउंट निकाल लिया। आई सेड कि इन्वर्जन काउंट निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपका जो भी आप स्टोरेज सेट यूज करने वाले हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेट भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट चेक कि जो करंट नंबर इंसर्ट करने वाले हो, ऑलरेडी इस सेट में इस नंबर से कितने बड़े नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर अ करंट नंबर्स ऑफ आई, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर बिगर देन द करंट नंबर इन दिस सेट। ठीक है, आपने वो पता कर लिए, वही नंबर ऑफ इन्वर्जन होंगे उस करंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उसके वजह से कितने इन्वर्जन क्रिएट हो रहे होंगे वो आपको पता लग जाएगा। एंड सिंस वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके लिए हमें इंडेक्सेस की ना जो दिक्कत होती है कि भाई लेफ्ट में है कि राइट में है, ये भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लेफ्ट में ही पुट कर रहे हैं। तो जब नंबर्स ऑफ आई को देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन से नंबर बड़े हैं छोटे हैं, वी ऑलरेडी नो दैट ऑल दीज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सेट, ऑल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द करंट नंबर, राइट? जो भी इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं, इन सबका इंडेक्स जो है वो लेस देन आई होगा, करेक्ट? क्योंकि ये सब इससे पहले आए हुए हैं। ग्रेट। सो लेट से हमारे पास पहले विंडो का आंसर आ चुका है। लेट्स कॉल इट एज आंसर, जो कि हम निकाल लेंगे। व्हाट कैन आई डू कि मुझे बस इस आंसर को ही अपडेट करना पड़े, ठीक है। अब मुझे जो नेक्स्ट विंडो है, उस नेक्स्ट विंडो बेसिकली कैसे बन रही है? नेक्स्ट विंडो बेसिकली बनेगी व्हेन यू रिमूव थ्री, व्हेन यू रिमूव थ्री एंड यू ऐड फाइव। तो हमारी जो नई विंडो होगी वो बन जाएगी दिस वन टू फाइव, करेक्ट? तो हमारे दो पॉइंटर्स यहाँ पर और यहाँ पर होंगे।
सो बेसिकली नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस सब एरे, क्या हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू सी। एक बेसिक फॉर्मूला ये आता है कि लेट्स से कि प्रीवियस स्टेप तक जो नंबर ऑफ इन्वर्जन थे, इन्वर्जन काउंट था, वो आंसर था। नाउ इफ आई रिमूव द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स क्रिएट बाय 3, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम 3 को हटाने वाले हैं, 3 को हम अपने विंडो से हटा रहे हैं, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स विच वर क्रिएटेड ड्यू टू 3, करेक्ट, विच वर क्रिएटेड ड्यू टू 3, ठीक है, एंड एड द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स विच विल बी क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ 5। तो क्या यही हमारा करंट विंडो का आंसर नहीं होगा? सिंपल सी बात है, लास्ट विंडो का आंसर था एएनएस, ओके, एंड देन द फर्स्ट एलिमेंट जो कि हम रिमूव करने वाले पिछली विंडो से, दैट इज 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स जो कि 3 क्रिएट कर रहा था, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो नेक्स्ट नंबर जो हम लेने वाले हैं अपनी विंडो के एंड में जो कि 5 है, उसको ऐड करने से कितने नए इन्वर्जन्स क्रिएट होंगे? अगर हम इन दोनों को माइनस और प्लस कर लें, तो हमारा जो करंट विंडो की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी ना, दैट वी विल गेट। सो इन अ बेसिक आइडिया यू कैन से ए एन एस ऑफ आई, ठीक है, मैं ऐसे ही अभी ए एन एस ऑफ आई लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, विल बी बेसिकली इक्वल टू कि जो भी करंट आंसर है माइनस इन्वर्जन्स विच वर क्रिएटेड ड्यू टू द एलिमेंट आई माइनस के, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट अब हमारे विंडो के बाहर जा चुका है। सो वी विल रिमूव द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स क्रिएटेड बाय द एलिमेंट आई माइनस के। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो एड द इन्वर्जन्स विच विल बी क्रिएटेड बाय एडिंग द ith एलिमेंट, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही रिकर्सिव, यही जो रूल है ये फॉलो करना है। जो प्रीवियस आंसर था, प्रीवियस विंडो का आंसर, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स विच वर क्रिएटेड ड्यू टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट विंडो, क्योंकि उसको हम हटा रहे हैं, एंड एड द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स विच इज क्रिएटेड बाय द करंट एलिमेंट, ठीक है। और इस तरीके से आप सारे विंडोज जो हैं, जितने भी विंडोज हैं, उनका एफिशिएंटली आंसर निकाल पाओगे। एट द सेम टाइम आप एक वेरिएबल रख लो कोई भी आंसर नाम का, ठीक है, और इसको आप मिनिमाइज करते रहो विद रिस्पेक्ट टू आंसर, जो भी आपका करंट वो आया है, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आए हैं, उसको आप मिनिमाइज करते रहो आंसर के साथ में, एंड एट बाय द एंड ऑफ द कंप्लीट लूप यू विल बी हैविंग योर मिनिमम इन्वर्जन काउंट अमंग ऑल द सब एरेज ऑफ साइज के, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इन्वर्जन ये और ये कैसे कैलकुलेट करना है, पॉइंट तो यही आता है, पॉइंट तो वही हो गया, ठीक है। अब समझो, जब हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था, देन वी वर बेसिकली लुकिंग एट द इन्वर्जन काउंट ऑफ द कंप्लीट सब एरे, राइट। पर यहां पर हम इन्वर्जन किसको देख रहे हैं? यहां पर वी आर लुकिंग एट द इन्वर्जन विच वर क्रिएटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। व्हाट वी आर डूइंग हियर, रिमूविंग द इन्वर्जन क्रिएटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट एंड एडिंग द इन्वर्जन क्रिएटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। तो हम एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पूरे एरे के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको पता लगाना है कि हाउ मेनी नंबर्स वर क्रिएटेड बाय हाउ मेनी नंबर्स वर अफेक्टेड ड्यू टू दिस आई माइनस के, इसके इन्वर्जन देखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली जाके ये देख लो, डायरेक्टली जाके ये देख लो, बिकॉज वी नो कि आई माइनस के अभी विंडो का स्टार्ट है, करेक्ट, हम ये आई पे हैं, यहाँ पर हम विंडो के स्टार्ट पे हैं, ठीक है। दिस मीन्स कि अभी जो हमारी विंडो है उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट यही है, वी नो कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट यही है, राइट। सो हमें लेफ्ट और राइट को चेक भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्या करूँ, जो आई माइनस के एलिमेंट है उससे चेक कर लो कि हमारे जो हमारा स्टोरेज था, सेट था, ठीक है, उसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे नम्स ऑफ आई माइनस के से छोटे हैं। जो हमने सेट बनाया था, रिमेंबर, जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरेज सेट लिया था, उसमें बस इतना चेक कर लो, हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन नम्स ऑफ आई माइनस के। बिकॉज वी नो कि ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, इसका मतलब जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस स्टोरेज में, वो सबके सब इसके राइट पे आते होंगे, राइट, इसीलिए हम डायरेक्टली इन्वर्जन का काउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स इनसाइड द सेट विच आर लेस देन नम्स ऑफ आई माइनस के, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा क्या है, लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, तो हमें सिर्फ इसके राइट में देखना, और राइट वाला एलिमेंट ऑलरेडी हमारे स्टोरेज में है, करेक्ट। सो व्हाट डू यू डू, ये काउंट आपने निकाल लिया डायरेक्टली, ठीक है, ये काउंट बहुत इजीली निकल जाएगा, आप बाइनरी सर्च लगा दोगे, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन यूज बाइनरी सर्च, मैंने बता ही दिया है कि यू कैन यूज बाइनरी सर्च, राइट, टू फाइंड दिस काउंट। एट द सेम टाइम जब आप कोई नया नंबर ऐड करोगे, तो दैट इज द सेम प्रोसेस जो कि हमने पहले के नंबर्स का, जो पहले के विंडो थी, उसका जो आंसर निकालने के लिए टेक्निक यूज किया था, वही यूज करेंगे यहाँ पर। व्हाट विल डू, व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द नम्स ऑफ आई in this storage, we'll check कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे नम्स ऑफ आई से बड़े हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल CNT1 is basically equal to what, number of elements in this storage set which are less than nums of I minus k। ये तुम्हारा हो जाएगा जितने तुमको इन्वर्जन्स रिमूव करने हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने हैं। एंड CNT2 इज व्हाट, CNT2 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विच आर बिगर देन नम्स ऑफ आई, ठीक है। अच्छा, नम्स ऑफ आई को इंसर्ट करने से पहले नम्स ऑफ आई माइनस के को हटा देना, ठीक है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड, ठीक है। ये CNT2 निकालने से पहले, जब CNT1 तुमने निकाल लिया, देन वी नीड टू रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम द स्टोरेज सेट, क्योंकि हमारा जो नया विंडो है उसमें इसकी कोई जगह नहीं है, राइट।
सो CNT2 विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर यू रिमूव नम्स ऑफ I minus k फ्रॉम द स्टोरेज सेट. उसके बाद आप CNT2 निकालो, अगेन बाइनरी सर्च हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिगर देन नम्स ऑफ I, करेक्ट, दैट यू कैन गेट बाय यूजिंग फ्रॉम दिस सेट बाइनरी सर्च अगेन. और फिर आपको बस अपना आंसर अपडेट करना है, आंसर इक्वल टू आंसर माइनस CNT1 प्लस CNT2. इन दिस वे फॉर ऑल विंडोज यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. और यहाँ पर आप एक यू कैन ऑल्सो एज आई सेड यू कैन डिक्लेयर मिन इन्वर्जन टाइप ऑफ वेरिएबल, जिसका आप इनिशियली कोई बाय डिफॉल्ट लार्ज वैल्यू रखोगे एंड यू कीप ऑन मिनिमाइजिंग दिस वैल्यू विद आंसर, राइट. एंड एट द एंड आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी योर आंसर, जो मिन वर्ग की वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर, राइट. नाउ लॉजिक बहुत सिंपल है, ठीक है. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस इज नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम. दिस लाइज ऑन द यू नो बाउंड्री ऑफ मीडियम एंड हार्ड, एंड इट्स मोर ऑन द मीडियम साइड, लेस ऑन द हार्ड साइड. ओके, सो दैट इज व्हाई द सोल्यूशन दिस प्रॉब्लम कैन बी डन वेरी इजीली. द पॉइंट इज कि ये जो अभी हमने काउंट निकाला और बाइनरी सर्च लगाया बड़ी इजीली, ठीक है, इसको एफिशिएंटली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू फाइंड दिस काउंट थिंग्स वेरी एफिशिएंटली. यहां पर एक डेटा स्ट्रक्चर आता है दैट इज नोन एज PBDS. फॉर ऑल C++ यूजर स्पेसिफिकली आई एम सेइंग दिस, ठीक है. बाकी लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो व्हाट यू हैव. सो PBDS इज बेसिकली अ पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. C++ में होता है. इट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग रेड ब्लैक ट्री इन द बैकएंड, ठीक है. रेड ब्लैक ट्री में आपको अभी इसका डिक्लेरेशन भी दिखाऊंगा हाउ इट वर्क्स. इट इज बेसिकली अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इन द बैकएंड. सो इट्स इंप्लीमेंटेड यूजिंग RBT रेड ब्लैक ट्री, ठीक है. एंड दिस सपोर्ट्स मेनली टू ऑपरेशंस, ठीक है. इंसर्ट और डिलीट को तो हम ले ही नहीं रहे. इंसर्ट डिलीट तो मान लो दीज आर की बेसिक ऑपरेशन है, तो करने करने हैं. PBDS provides you two main things, two main operations, ठीक है. The first operation is find by order, and the second operation is order of key, ठीक है. Find by order क्या करता है? Let's say if you have a PBDS initialized, आपने कोई PBDS बना लिया, मान लो कोई ST करके है, इसका नाम बना लिया आपने. So if you do ST dot find by order, ठीक है, and you give an element here, right? So this will basically return an iterator or a pointer denoting to the position where this given value should be in the PBDS, ठीक है. जब आप फाइंड बाय ऑर्डर करते हो तो फाइंड बाय ऑर्डर बेसिकली टेल्स यू कि जो करंट आपने जो एलिमेंट इसमें दिया है x, इसको हमारे स्टोरेज या PBDS में किस पोजीशन पे होना चाहिए, वहां का पॉइंटर रिटर्न कर देता है. दैट इज बेसिकली फाइंड बाय ऑर्डर, ठीक है. हमारे इस क्वेश्चन में दिस इज ऑफ नो यूज. हमारे लिए काम आता है ये वाला, विच इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ की. ऑर्डर ऑफ की बहुत ही प्यारा ऑपरेशन है, ओके, बहुत ही प्यारा ऑपरेशन है. व्हाट दिस टेल्स, इफ यू डू st डॉट ऑर्डर ऑफ की and then you give a number, this basically gives you this basically gives you the count of numbers in st, जो कि हमारा PBDS है, which are strictly less than x. Okay, this order of key basically tells you the number of elements in your PBDS, in your whatever variable you have named. I'll say call it as PBDS. So this will basically tell you the number of elements in your PBDS which are strictly less than x, which are strictly less than x. हम इसी का यूज करके अपना CNT1 और CNT2 दोनों निकाल सकते हैं. आई थिंक इसके आगे तो कॉमन सेंस वाली बात है दैट हाउ डू वी कैलकुलेट इफ यू आर एबल टू गेट दिस काउंट ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स, देन जस्ट सब्ट्रैक्टिंग बाय द साइज ऑफ द PBDS यू कैन गेट द नंबर ऑफ बिगर और इक्वल एलिमेंट्स, करेक्ट. ये आपको मिल जाएगा, राइट. तो जहां पर हमको याद है वी वर गोइंग टू रिमूव द इन्वर्जन क्रिएट बाय व्हाट, इन्वर्जन क्रिएट बाय I minus k. सो इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट यू हैव टू सर्च बिटा द स्मॉलर एलिमेंट्स, जहां पर ऑर्डर ऑफ के डायरेक्टली काम आ जाएगा. एंड फिर जब आप इंसर्ट करोगे तब आपको निकालना पड़ेगा कितने एलिमेंट्स बिगर हैं, क्योंकि उतने इन्वर्जन ऐड होने होंगे. तो सबसे पहले क्या करोगे, लेस नंबर निकाल लोगे और फिर साइज से माइनस कर लोगे टू गेट यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर बिगर देन द करंट एलिमेंट, तो जो हम इन्वर्जन ऐड करेंगे, राइट. सो यूजिंग दिस बड़े आराम से PBDS से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. एंड ऑल्सो बोथ दीज ऑपरेशंस विच इज बेसिकली फाइंड बाय ऑर्डर, okay, and order of key, insertion and deletion, all of these four operations in PBDS takes log n time, okay. All this takes up only log n time क्योंकि ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, it is a red black tree in backend. So that is why every operation, insert, delete, find by order and order of key, all of these operations are done in the time complexity of log n, right. So हम बेसिकली क्या कर रहे थे, फॉर हमारे पास n minus k विंडोज थी और हर एक विंडो का आंसर निकालने के लिए हमें बस लॉग के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो PBDS है, ठीक है, उसमें एक टाइम पे कितने एट मैक्स नंबर हो सकते हैं, कई तो हो सकते हैं, क्योंकि हम उससे ज्यादा पुश ही नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही के विंडो साइज पहुंचती है, नेक्स्ट एलिमेंट को जब हम लेते हैं तो पिछले वाले एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, राइट. तो हमारे PBDS का साइज जो है वो हमेशा के ही रहता है, के या के से कम रहता है.
So that is why the time complexity of this approach can go to what? Again k equal to n by 2 अगर ले लो, so this becomes what? N by 2 log n by 2 या फिर n log n, and this will easily pass. This will easily pass. So using PBDS you can efficiently do this problem. Let's go to the code part. Okay, great. So first of all मैं आपको दिखा देता हूँ how in C++ this is implemented. Include some header files and you use the namespace GNU PBDS. This is how basically you define a red black tree, basically PBDS. Okay, we name it as ordered set. तो जैसे आप कोई type mention करते हो, so we have named it as a type ordered set, and then this is of type what? Pair l comma pair of numbers. ठीक है, क्योंकि हम दो चीजें घुसाएंगे. We will insert two things. First is basically the nums of I और उसके बाद उसका index. ठीक है, ये दोनों चीजें इंसर्ट कराएंगे ताकि हमें पता रहे कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में है. हमें ऑर्डर ऑफ की फाइंड बाय ऑर्डर ऑफ की यूज करने में इजियर होगा. दैट इज व्हाई वी इंसर्ट बोथ दीज नंबर्स. Okay, and then you can see we have arbitrary tag. Arbitrary tag basically means कि red black tree implemented use हो रहा है. That is what is basically being used. जो इसके पीछे जो algorithms हैं वो red black tree से आते हैं. ये तो डिक्लेरेशन था, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. देन वी डिक्लेयर एन ऑर्डर सेट st. ठीक है, उसके बाद अपना आंसर एरे बना लिया, आंसर वेरिएबल बना लिया. दिस इनवर वेरिएबल विल बी बेसिकली काउंटिंग द इन नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन एवरी विंडो. ये दिस आर फाइनल आंसर. देन वी टेक द फर्स्ट k elements. So what do? We first check how many elements are lesser than nums of I. How many elements are lesser than nums of I. ठीक है, and then whatever element we have used int max. ये int max क्यों किया है? So basically देखो, हो सकता है कि सेम वैल्यू बार बार रिपीट हुई हो. लेट्स से 2 अभी आया है और 2 उसी सेम विंडो में एक और बार आया है, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंडेक्स के बेसिस पे देखता, द पॉइंट इज जो वो दूसरा 2 था ना, जो मान लो उसके पहले या बाद में कभी आया है, वो भी काउंट हो जाता. वो भी हमारा काउंट हो जाता है किसमें? टुवर्ड्स काउंटिंग इन्वर्जन्स. देखो, व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, या फिर जो पहला वाला नंबर दैट इज स्मॉलर देन, तो वो इन्वर्जन नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड इंट मैक्स हियर, ताकि हमें स्ट्रिक्टली वो नंबर मिले जो कि नम्स ऑफ आई से स्ट्रिक्टली क्या है? छोटे हैं. ठीक है, हम सारे नंबर्स ये निकाल लेते हैं जो कि नम्स ऑफ आई से स्ट्रिक्टली छोटे हैं. अगर इक्वल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं. ओके, वी काउंट ऑल द वैल्यूज व्हिच आर लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई. तो जो भी बचे हुए नंबर्स होंगे दैट विल बेसिकली बी क्रिएटिंग एन इन्वर्जन फॉर दिस करंट एलिमेंट, करेक्ट? क्योंकि वही उससे बड़े हैं. ठीक है, सो बेसिकली वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द करंट VBDS एंड वी एड टू द इन्वर्जन. सो ऐसे हमको हमारा पहले के एलिमेंट्स का इन्वर्जन मिल गया. देन वी मिनिमाइज दिस आंसर. देन कम्स द मेन पार्ट. यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ की. ठीक, क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट जो i माइनस के वाला एलिमेंट था उसके इन्वर्जन को हटाना था. सो व्हाट डू? वी चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स आर व्हाट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन बेसिकली नम्स ऑफ i माइनस के. ठीक है, हम देखते हैं कि इससे स्ट्रिक्टली छोटे कितने, स्ट्रिक्टली छोटे, राइट? बिकॉज अगेन whichever number is bigger than or equal to nums of I minus k, that is not going to ever create an inversion. ठीक है, तो छोटे नंबर्स हैं, सिर्फ वही होंगे जिनकी वजह से इन्वर्जन क्रिएट हो रहा होगा, राइट? लेट्स से हैव टेकन अ नंबर, ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट साइड है एंड दैट इज बिगर देन सम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड. तो इसका मतलब है कि जो इन्वर्जन क्रिएट हो रहे होंगे वो स्मॉलर नंबर्स की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, नॉट फॉर द बिगर नंबर्स. तो दैट इज व्हाई वी फाइंड व्हाट इज द द नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स फ्रॉम नम्स ऑफ माइनस के, तो इसको रिमूव कर देते हैं. देन वी डिक्रीज इट फ्रॉम द नंबर ऑफ इन्वर्जन. और फिर अगेन एज वी जो हमने पहले किया था for the current incoming element in the window जो कि nums of I है, we again do the same thing to get the number of increments in the inversions, जो कि इस element को reduce करने से inversions create होंगे, उनको ले लेंगे, right? And in this way this whole process goes on, and again at the end you again do a last check on minimum number of inversions and you return the answer. The overall time complexity as we have discussed, it's n log n, and the space complexity is order n, क्योंकि हम n pairs push कराएंगे at max. सिंपल सी बात है. और यू कैन से इट्स एक्चुअली ऑर्डर के. वाई ऑर्डर के? क्योंकि हमारा जो PBDS का साइज है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली कंटेन्स एट मैक्स k एलिमेंट्स एट अ टाइम. दैट इज वाई स्पेस इज ऑर्डर k and the time complexity is n log n. And this is basically how we solve all the four problems, all this fourth problem. And yeah, with this we come to an end of the the solution discussion for this contest. Overall, from my perspective, this contest was on the easier side. Okay, it contained mostly medium problems. There were no easy problems, to be honest. Okay, but all the medium problems were basically based on brute force approach. So again, I'll say they were on easy medium side, but yeah, less on the easy side, more on the medium side. And there was actually no hard problem at all. The last problem, the fourth problem, is basically, yeah. So the last question was more on the medium side. It was a medium hard problem, not exactly a hard problem. And yeah, it was doable in 1.5 hours, the time that is given for the contest. So yeah, do like, share, subscribe. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू रेगुलरली गेट द अपडेट ऑन द कंटेंट दैट आई एम पोस्टिंग. ठीक है, मिस आउट मत करना, बिकॉज आई डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन वेरी डिटेल, द सॉल्यूशंस इन एवरी डिटेल, एज वेल एज द वॉक थ्रू ऑफ द कोड.
दैट इज सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टा पेज विच इज बेसिकली इट्स कोड टाइम का ऑफिशियल पेज है. प्लीज गो एंड फॉलो दैट. Okay, and also join our WhatsApp community and the Telegram channel where I regularly share the updates directly. So let's say if you are not able to get any alert from YouTube side when I post a video, you will find those videos directly on the WhatsApp community or the Telegram community. Comment करो, subscribe करो. कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन एज आई ऑलवेज से कि कमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर कमेंट्स गिव मी द बूस्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, गिव मी पोस्ट डाउन योर सॉल्यूशंस, व्हाट वर योर अप्रोच, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वर यू एबल टू डू, एंड which problem do you specifically like and which approach of mine did you like. And if you have some other approach you can also give that. Give constructive criticism. जो आपको अच्छा लगा वो बताओ, जो अच्छा नहीं लगा वो बताओ. And if you want me to go for other things as well, कुछ और भी करना चाहते हो कि मैं कवर करूं, then also drop that in your comment section. Like करो and share it with your friends and peers so that उन तक भी पहुंचे. And follow the Insta page to get regular updates. यहाँ पर मैं puzzles भी post करता हूँ, right? And that is all for this video. This is Amit Shukla signing off. Bye bye guys. Grind करते रहो, रगड़ते रहो और गर्दा उड़ा दो.